अहमद और हैदर दो पायलट्स थे। अहमद हॉस्पिटल में है, हैदर को वी आर ट्राइंग टू ट्रैक। लंदन में अहमद की एक बहन है, रूबीना। डू वी हैव डिटेल्स? यस सर। ग्रेट, सेट अप द कॉल। एलिस क्या है मेरा? शहजाद इकबाल, नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रूबीना। मैं शहजाद इकबाल बोल रहा हूँ, नया पाकिस्तान न्यूज़पेपर से। आपके भाईजान अहमद के मुतालिक कुछ बात करनी थी हमसे। आपको मीरगुल साहब ने नंबर दिया है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मीरगुल साहब। आपके भाईजान पायलट है ना एयरफोर्स में? देखिए, मैं मीरगुल साहब से साफ कह चुकी हूँ कि मैं मीडिया से दूर रहना चाहती हूँ। भाईजान अस्पताल में है और जब तक मेरी उनसे खुद बात नहीं हो जाती, मैं किसी भी गैर वाजिब अफवाह को बढ़ावा नहीं देना चाहती। सो प्लीज आगे से मुझे फोन ना करें। खुदा हाफिज। Sarah, I need all the information on this Meergul right away. Getting details on Meergul, sir. So Meergul एक 54-year-old इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट है। 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री के थ्रू पूरा कंट्रोल लिया था, तब से मीरगुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल्स लिख रहा है। हमें इस मीरगुल से बात करनी होगी। मैं रूबीना बनकर मीरगुल से बात कर सकती हूँ? नहीं, रूबीना की आवाज वो पहचानते हो। सारा ये कौन है? जूम इन करो इस पे। So that's Sana Sheikh, रूबीना की cousin. Do we have her details? Yes sir. Great. मनीषा, तुम सना बन के मीरगुल से बात करो। See that there? That is a state-of-the-art kick-ass aircraft with all the bells and whistles money can buy. And yet a 50-year-old Indian M21 shot it down. What was the name of the pilot? Abhiman? No. Listen, my friend, that's the biggest pile of horseshit I ever heard. India can't prove nothing. They're just trying to look good in front of the world media. That's all. So prove me, gentlemen, that India never brought down the SX-16. Otherwise, the deal goes to France. Akib, we gotta talk, man. हेलो। सलाम वालेकुम। क्या मेरी बात मीरगुल साहब से हो रही है? जी बोल रहा हूँ। मीरगुल साहब, मैं लंदन से रूबीना की कजिन सना शेख बोल रही हूँ। रूबीना फिलहाल बहुत डरी हुई है, लेकिन उसने जिक्र किया था कि आप कुछ बात करना चाहते थे। दरअसल मुझे उनके भाई अहमद के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। अहमद भाईजान से कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। शायद रूबीना का फोन भी टैप है। अब उन्होंने कुछ तो बताया होगा? जी, 2 हफ्ते पहले बताया था कि वो अस्पताल में थे, लेकिन फिर एयरफोर्स वाले एक ही जवाब बार बार दिए जा रहे हैं। हमें बहुत फिक्र हो रही है। ये पाकिस्तान है सना, यहाँ डेमोक्रेसी की स्पेलिंग भी हुकूमत तय करती है। प्लीज मीर साहब, मैंने बहुत उम्मीद से आपको फोन किया है। अहमद भाईजान के दोस्त हैदर भाईजान भी फोन नहीं उठा रहे। अगर आप एक बार अस्पताल चले जाए तो। मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। मेरा नंबर सेव कर लें, मैं फिर से फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है। Samantha Andrews? Hi. Hi. I'm Rakib. Nick said you're a friend. Oh, very nice to meet you. Welcome to the land of Indus Valley civilization. Sorry if it isn't that India. No. We have all the major sites. Mohenjo-daro, Harappa, Ganeriwala. What do they have? Tola Mira in Kutch. That was also a part of Sindh at one time. Sorry, it's all very confusing. Yes. Except Palestine and Israel, everything else is confusing to Americans. Excuse me? Never mind.
Have a seat. So, you're here on business. I'm here to help. Thank you. I'm from the Global Daily. We're doing a special section on defense. Nick told me to cover SX-16s, but I've heard some of them are missing. Nothing is missing. Oh? It's very much there. Where is it? It's amazing, right? Yeah. Very nice point. Always pleasure doing business with Americans. We'll take your leave. Wait for your article. Write something nice about this Indus Valley civilization. Huh? There's a lot on the line here, Nick. Are you sure this Rakib can be trusted? Believe you me, this man knows what he's doing. And what if there's an investigation in the future? Well, it's like I said before. If you're with us, everything's going to be taken care of. Okay. Happy writing. India is sticking to its claim of shooting down the SX-16. But the article does raise valid questions. The jet is indeed in Pakistan. Well, I believe in the American truth, which is backed by an American journalist who visited Pakistan herself. There is no further doubt. जब हमारे जेट्स हैंगर में मौजूद हैं, तो ऐसे झूठे दावों के साथ आखिर हासिल क्या करना चाहता है हिंदुस्तान? ऐसे आर्टिकल्स भारत की छवि पर दाग लगाते हैं और इनका यही मकसद है। अगर ये बात सच है, तो वो कौन सा SX-16 था जिसे विंग कमांडर अभिमन्यु ने मार गिराया? आखिर इंडियन एयरफोर्स अभी तक चुप क्यों है? ये जान की बाजी खेल के गिराया था मैंने जेट को। हर सांस का एक ही मकसद था, और अब दुनिया सवाल उठा रही है। Come out of this, अभिमन्यु। Look outside. पूरा देश तुम्हारे नाम के नारे लगा रहा है। ये न्यूज, मीडिया, स्पेक्यूलेशंस तुम्हारा सच नहीं बदल सकते। I'm sure कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और तुम्हारा सच दुनिया तक पहुंचेगा। देखिए, रुबीना की परेशानी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हिम्मत का जहाज जैसे गिरा था, उसका बचना बहुत मुश्किल था। एक वतन परस्त पायलट की बहादुरी और हौसले की कीमत फकत गुमनामी? ये तो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आप मुझे माफ करें मीर साहब, रुबीना से बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं बस अहमद की बहन को उसका सच बताना चाहता हूं। अहमद तुम्हारे भी भाई जैसा था और ये उसका हक भी है। तुम बस अपना सच बताने की हिम्मत रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। सिंह साहब इज सेइंग SX-16 बनाने वाली कंपनी मेरिडियन फायरआर्म्स का ब्रोकर निक, उसने ये आर्टिकल लिखवाया।
इसका फायदा तो रकीब को होगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों मिले हुए हैं। मीरगुल कॉलिंग फॉर सना। सलाम वालेकुम मीरगुल साहब। वालेकुम सलाम सना बेटी। अस्पताल में किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन मैं हैदर से मिला। वो अपना सच मीडिया के सामने रखने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद एयरफोर्स को जवाब देना लाजमी होगा। फिर शायद तुम अहमद से बात कर सको। जी, बड़े बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? उनकी बात हो गई है हैदर से और हैदर अपना सच बताने के लिए तैयार है। कश्यप। सर। FATCD सेशन डेट। ये तो 7 दिनों में है सर। एग्जैक्टली। वो लोग हमारे पिटिशन को चैलेंज कर रहे हैं और हमारे हाथ में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। आ जाएगा सर। We're really close. सेशन इज इन 7 days। और तुम जानते हो ना वहां तुम्हें कौन मिलने वाला है? रकीब हमीद अस्कानी, जिससे तुम पहले भी मिल चुके हो। आपको लगता है एयरफोर्स आपकी बगावत को नजरअंदाज करेगी? आपको मालूम है, जिस दिन से मैं वापस लौटा उस दिन से एक रात की भी नींद पूरी नहीं हुई है। हर दम, हर लम्हा मुझे अहमद का चेहरा नजर आता है। हाँ, मैं वतन परस्त हूं, लेकिन इंसानियत की कीमत पर नहीं। और मैं कितना भी वफादार हो जाऊं, गैरत में तो कता ही रहेगी। मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम हैदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल इंतजाम हो गया है। कल सुबह तुम दुनिया के सामने बस अपना सच पेश करोगे। मीर साहब, मेरी फैमिली तो महफूज रहेगी ना? अल्लाह रहमो करीम है हैदर। तुम बेखौफ होकर कदम बढ़ाओ। खुदा ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। आमीन। मनीषा, अभी तक फोन नहीं आया। सर, लंदन से सारा सेटअप करवा दिया है मैंने। डेली मेल के जफर की भी बात हो गई है मीरगुल से। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस विल हैपन। मैम, मीरगुल कॉलिंग। Get up. अस्सलाम वालेकुम मीरगुल साहब। वालेकुम सलाम सना बेटा। कैसी हो? और रुबीना कैसी है? जी, सब खैरियत है, बस फिक्र रहती है रुबीना की। ज्यादा बात नहीं करती है वो आजकल। बेटा, वक्त जख्म भी है और मरहम भी। हमें अपना सफर जारी रखना है। साहब, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हैदर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन हुए वाकये का तफसील से बयान करने वाला है। लेकिन अहमद भाईजान? अहमद तक पहुंचने के लिए ही तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हैदर के बयान के बाद हुकूमती इदारे दबाव में आ जाएंगे और उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। शुक्रिया मीर साहब। फिर तो बस कल का ही इंतजार रहेगा। इस कल का इंतजार हम सबको है बेटा। अल्लाह निगहबान है, महफूज रखेगा। जी, आपको भी। Yes! That's it.
सारा सामान मेज पर रख के चुपचाप यहाँ बैठ जाए। सलामवालेकुम रुबीना, माफ कीजिएगा, थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। आजकल वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है। कौन है आप लोग? हम आपके भाई अहमद के दोस्त हैं। कहाँ है अहमद भाईजान? मेरी उनसे बात करवाइए। कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर वक्त कोई नया ऑफिसर अपने प्रोटोकॉल की बात कर देता है। आपके भाई अहमद मुल्क की आबरू के लिए तलवार बन के अड़े रहे। थोड़े जख्मी हैं, लेकिन फौलाद है। इलाज चल रहा है उनका, इसलिए ऐसे हालात में आपको प्रेस और मीडिया से दूर रहना होगा। ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल है। देखें, फोन उन्होंने किया था पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने साफ मना कर दिया। मैं बस अपने भाईजान की सलामती चाहती हूँ और कुछ नहीं। किसने फोन किया था आपको? कोई जर्नलिस्ट थे, नया पाकिस्तान से। शहजाद नाम था शायद, पर खुदा कसम मैंने कुछ भी नहीं कहा। देखिए, बस एक दफा मेरे अहमद भाईजान से बात करा दे प्लीज। वतन को आपकी जरूरत है रुबीना। वतन की खातिर कुछ वक्त के लिए आपको अपने भाई अहमद से दूरी इख्तियार करनी होगी। उसने कुछ पैसे भेजे हैं आपके लिए। घबराइए नहीं, अल्लाह पर यकीन रखिए। जल्दी सब ठीक हो जाना है। खुदा हाफिज। डरी हुई, सच बोल रही। नया पाकिस्तान मैगजीन लंदन में छपनी शुरू हुई थी सर, 2 साल में ही बंद हो गई। कुछ नहीं है, हिंदुस्तानियों की फितनेबाजी है। बेकार में बाजी पलटने की कोशिश कर रहा है। FATC के लिए हमारे पास 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं सर। पाकिस्तान का बालाकोट में टेररिस्ट को पनाह देना, पाकिस्तान का हमारे खिलाफ SX-16 का इस्तेमाल करना जो कि उनकी अमेरिकन डिफेंस डील के खिलाफ है, और विंग कमांडर अभिमन्यु का M21 से एक SX-16 को मार गिराना। बालाकोट। इस कैंप की लोकेशन और यहां रह रहे 150 आतंकवादियों की आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ के लिए हमने हमारे 2 एसेट्स इकबाल और फाहिमा को वापस बहावलपुर की तरफ भेज दिया है सर। कश्यप, प्लीज कीप एन आई ऑन देम। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। SX-16 सर, अमेरिकन जर्नलिस्ट समंथा का आर्टिकल हमारे SX-16 के क्लेम को क्वेश्चन कर रहा है सर। डोंट वरी, मैं वॉशिंगटन से बात करता हूं। अगर वो उस आर्टिकल से डिस्कस कर लें तो हमारे पॉइंट स्ट्रेंथन हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द दूसरा बंदा? उस दूसरे बंदे को हमने आइडेंटिफाई किया है सर। उसका नाम अहमद है और वो SX-16 पायलट ही है। उस तक पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन जो दूसरा SX-16 पायलट था हैदर, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के थ्रू हम उस तक पहुंच गए हैं और कल सुबह हैदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सच बताएगा। That's good. Yep. Do we have any other points? सर, SX-16 का सबसे बड़ा लिंक है विंग कमांडर अभिमन्यु की फ्लाइट रिकॉर्डिंग्स। और स्क्वाड्रन लीडर रिचा उन रिकॉर्डिंग्स को क्लीन अप करने की पूरी कोशिश कर रही है सर। I want you to know, पाकिस्तान पर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगे, ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। FATC की मीटिंग अगले हफ्ते है, लेकिन सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होगा। हमें एक ऐसा गवाह चाहिए जो उस वक्त वहां मौजूद था। लेट्स कॉल अभिमन्यु। यस सर। हेलो, मामू जान से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल, कैसे हैं आप? मामू जान, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत जरा नासाज है। हमें भी इसी मसले पे बात करनी थी। एक बहुत बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है
आप जल्दी से अम्मी का चेकअप करा के जांच की रिपोर्ट भेजिए हमें। अम्मी जान बात ही नहीं सुनती, हमको कुछ भी बोलो तो जबान से आग बरसाने लगती हैं। उनके इलाज के लिए जरा वक्त तो लगेगा ही ना। 2 दिन के बाद का टाइम दिया है डॉक्टर ने, रिपोर्ट नहीं आई तो सब बिगड़ जाएगा। मामू जान मैं पूरी कोशिश करूंगा अम्मी को मनाने की। कोशिश नहीं बेटा, तुम्हें अपनी अम्मी के लिए ये करना ही होगा। हाँ जी मामू जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना टाइम लगेगा? मैंने ईमेल्स और फोल्डर्स में जो भी डाटा था उसका बैकअप तो ले लिया है, लेकिन जो सबसे अहम फाइल्स हैं वो याकूब भाई के डेस्कटॉप में ही है। लेकिन एक मसला है, उनका जो डेस्कटॉप है उसमें हैकिंग या ऑनलाइन लीक के डर से इंटरनेट को डिसेबल कर दिया है। तो अब क्या हमको उनके डेस्कटॉप में एक लोकल ऑनलाइन सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका डेटा रीडायरेक्ट करके नीचे वाले सर्वर रूम में भेजेंगे। वहां से मैं आसानी से लिंक बना के उसे सैटेलाइट पे अपलोड कर सकता हूँ। सर्वर बनाएंगे कैसे? मैं आपको एक डिवाइस दूंगा, उस डिवाइस को आपको याकूब भाई के डेस्कटॉप में प्लग इन करना पड़ेगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलो। Arthur, just wanted to check on the update on the mail I sent. I checked it, and I showed it to the senator as well. Pentagon has decided to issue a statement distancing itself from Samantha's article, which was clearly bankrolled by the company. U.S.-Indian relations have been better than ever. That's fabulous, Arthur. Thank you so very much. I look forward to the statement from the Pentagon. Okay, thanks. I see you're interested in contesting the Indian claim. Yes, ma'am. I mean, it's a huge allegation saying that the plane was shot down when, in fact, an American journalist verified that it wasn't. Pentagon has distanced itself from your paid article. There really is no point pursuing this any further. Ma'am, with respect, we are a company with loyal customers. We sell fighter planes that make this world a safer place. We are Americans. We are world leaders in defense technology. When they start doubting our planes, you can be sure as shit, pardon my French, that they are doubting that flag. They are doubting America. So yeah, I think it's important that we maintain our position in the world as leaders. And all we need is an interview with that pilot, Abhimanyu. Okay. Despite Pentagon objection, I, personally, will do you a favor. I'll speak to NSA Mr. Dutter. He's a friend. If he allows, you've got your interview. Thank you, Catherine. Please. Welcome, Benjamin. Thank you. Proud of you. Mr. Saini. Thank you. Pleasure. And this is Sergeant Leader Chassid. हम पहले मिल चुके हैं। Of course. Team Commander Jan. Welcome, Officer. Same here. Please. Thank you, everyone. It's an honor to be in the presence of you all. We are all very proud of you, Wing Commander. पर अफसोस लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लड़ाई कभी खत्म नहीं होती सर, इसीलिए तो हम हैं। So, SX-16 का यूसेज और शूट डाउन दोनों को ब्लेटेंटली डिनाई कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये सब 9 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर हुआ। सैटेलाइट इमेजेस इतनी एक्यूरेट नहीं है। और तुम्हारे M21 के रैकेज को उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है। SX-16 की रैकेज तो वो दिखा ही नहीं रहे, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हमें उन्हें FATC में चैलेंज करना है, then we need to know what happened that day. आजकल 2 साल पुराना मोबाइल यूज करना मुश्किल हो जाता है, और आपने 50 साल पुराने प्लेन के साथ SX-16 को मार गिराया।
आपके काबिल हाथों में 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी भी एक लीथल वेपन बन गई। दिस इज अ टेस्टमेंट टू योर स्किल एज पायलट। थैंक यू। हम ये सब दुनिया के सामने लेके आएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने SX-16 हमारे अगेंस्ट यूज किया, जो कि उनकी अमेरिकन डिफेंस पॉलिसी के खिलाफ है। और इन दोनों बातों के साथ हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को झूठा साबित करेंगे और उन पर ट्रेड सैंक्शंस भी लगवाएंगे। विंग कमांडर अभिमन्यु, सर, you will need to bring down the enemy once again. This time with facts. सर, हम इंडियन एयरफोर्स हैं। ना टारगेट मिस करते हैं, ना फैक्ट्स। And I will bring them down every time I have to. सर, एयरफोर्स ने 2 एयर टू सरफेस मिसाइल्स रिकवर की है। These are the SX-16 missiles. Great. Now we have the proof. सर, पेंटागन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। Arthur has done his job. सर? Nothing. अब उस समझता के पूरे आर्टिकल की वैल्यू खत्म। Yeah. I know you sent Samantha because your deal was fucked by Manisha. Well, what's done is done, Rakib. And now we're in Delhi to interview that pilot, Apamanu. कभी-कभी समझ में नहीं आता कि तुम अमेरिकन इतने पावरफुल कैसे हो। I don't understand what you're saying. Indians won't let you interview Abhimanyu. I'm sending you something which might interest you. Use it wisely and make sure she bleeds. जैसे मोबाइल्स की लोकेशन सैटेलाइट से ट्रैक होती है, ठीक वैसे ही फ्लाइटर जेट्स की भी होती है। इनफैक्ट प्लेन्स का एक्यूरेसी मोबाइल से 10 गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सर, एक कमरे में 5 लोग हैं। उन 5 ने उस कमरे के अलग अलग फोटोज क्लिक करी है। जब उन सब फोटोज को मर्ज करेंगे तो उस रूम की कंप्लीट पिक्चर सामने आएगी। बस वैसे ही मेरे जेट का डेटा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रविंदर के जेट का डेटा और एवॉक्स का डेटा को कंबाइन करके एक नई और डिटेल्ड तस्वीर बनाई जा सकती है। मैं इंट्रूडर्स को कंफ्यूज करने के लिए अपना रेडार तो बंद कर दिया था, लेकिन टैगिंग डेटा एवॉक्स के सर्वर में रहता है। Wing Commander, what exactly is this data? जरा आप एक्सप्लेन करें। May I? सर, जब फोन से फोटो लो तो फोन कैप्चर करता है आपका लोकेशन, फोटो कहाँ ली गई है, वीडियो कहाँ बनाया गया है। ठीक उसी तरह एयरक्राफ्ट भी ऑडियो, वीडियो, रडार सबका डेटा वापस एयरबैग्स को रूट करता है। सो बेसिकली मल्टीपल सोर्सेज का डेटा एक जगह पे कंपाइल तो होता है ना? यस सर, बट जेट्स ऑफ रडार होने की वजह से हमारे डेटा में गैप्स। एंड दैट्स वेयर आई कैन हेल्प यू सर। मैं एक पॉड सिमुलेशन से पूरी जर्नी रिक्रिएट कर सकता हूँ। कोऑर्डिनेट्स मेरे दिमाग पे छपे हुई है, फिर जियो टैगिंग ट्रेल कंप्लीट हो जाएगी। ब्रिलियंट। और हम इस कोलेटेड डेटा को वेरीफाई करके एविडेंस के तौर पे फैटिक में भेज सकते हैं सर। लेकिन सर, इस सिचुएशन में डेटा वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है। इम्पॉसिबल तो नहीं है। दत्ता जी, एक्चुअली वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। पर ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट तो करती है ना। दुनिया में सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो MSD यानी एरियल मल्टी सोर्स डेटा को वेरीफाई करती है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सर, पुट ऑन नई खबर। छोड़ी साहब, आप रुबीना को मॉनिटर करेंगे। विक्टर सर, कॉल मीरगुल। यस सर। Three, 2, 1, go. सलाम अलैकुम मिर्गुल साहब, सब तैयार है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। मैं वही जा रहा हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। क्या कह रहे हैं? It's on his way.
कितना टाइम? 40 मिनट और है सर। ऑल सेट। पूछ लीजिए। सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विंग कमांडर हैदर फारूकी पाकिस्तान एयरफोर्स से मुतालिक सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास है। पिछले कुछ दिनों में मुझे बेहद अजीब से फोन कॉल्स आ रहे थे और उन कॉल्स में मुझे बेहद सारे पैसे ऑफर किए जा रहे थे अपने बयान को बदलने के लिए। और आज मैं पूरे मुल्क और तमाम दुनिया के सामने अपने यूनिफॉर्म और अकीदे के हवाले से एक बात साफ कर देना चाहता हूं। प्लेन इंडिया का गिरा था, वो प्लेन मैंने मार गिराया था। ये बोल क्या रहा है? उसके बाद जो कुछ हुआ उससे आप सब वाकिफ हैं। ये सरहद पार वाले अपने पायलट की बेवकूफी को जायज बताने के लिए बेबुनियाद दावे कर रहे हैं। चालू हो